नुक्ता चीनी से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, पर वक्त आगही के लिए घंटी जरूर दबा दीजिए। I'm not an actress. It's, I think, my LinkedIn profile that says so, because I think somewhere in my experiences I had mentioned that I have acted once or twice maybe, professionally of course, but yes, actress is something of course which I always dreamt of becoming and I could not, so that's like a sore spot. So yeah, Ulumopolo Media, and I'm surprised that none of you has heard of it. सब लोग यहाँ पे आके बोल रहे हैं there are no platforms to talk, there are no platforms where people go discuss their issues and speak and what not, and no events take place here. There are no, so I am disappointed, which means we need to up our marketing game, man. So yeah, guys, it's been 6 months, 6 years that in Lahore, in our very city, there exists a place which we call a safe communal space. And वहाँ के ऊपर में हम क्या करते हैं कि हर हफ्ते all these 6 years there has never been a weekend जहाँ के ऊपर में जिस पर हमारे स्टूडियो पे कभी कोई इवेंट्स नहीं हुआ हो, and the range of events is varies from film screenings to talks to comedy nights to musical gigs, and it goes on, and I will come to it later as well again. So yeah, let me reintroduce you myself, which is like going to be more relevant to the platform that I am standing here on today. I come from a family where my father's maternal grandfather was an All India radio artist. My grandfather was again an All India radio artist and Radio Pakistan artist, and then he was a theatre artist as well, where he would not just write and direct his own plays, but also would paint. He was the art director of his own place, and he would paint his own, let's say, backdrops and whatnot, and make all his props by himself. Then comes in, of course, my father and my mother. My mother was a radio artist. My father is not just an actor, but a writer and producer and a director on all 4 mediums: radio, film, theatre, TV, of course. बहुत लंबी सी rant है. फिर उसके बाद में comes my brother, and there was this little me sitting on the dastarkhan of our joint family एक रात को, and expressed my wish to my father. I want to become an actress, and my father said, तुम्हें पता है कौन लोग करते हैं ये काम? और मैंने of course उनको कोई जवाब नहीं दिया, but back in my head of course, and everybody knew blatantly, and this is how timid I was as a child. Of course मुझे पता है कौन लोग ये काम करते हैं, हमारी चौथी नस्ल ये काम कर रही है और आप मुझसे पूछ रहे हैं कौन काम करता है, but still I was disallowed to pursue my career in acting. So yeah, ये कोई मैं थी बहुत छोटी थी, 6-7 साल टाइप, maybe and this is like exactly now 30 years since this has become a platform where people are confessing their ages also. So yeah, I am 37. Ever since I knew I was born, I always knew that I wanted to become an actor, or I would train myself in front of mirrors, of course, closing myself in a storeroom or ये और वो और bathroom के अंदर में ये वो plan. I would always keep practicing तलत हुसैन की तरह बोलना, जमाल शाह कैसे बोलते हैं, of course how my father speaks, and जितने मेरे सारे favorite actors होते थे, वगैरह वगैरह वगैरह. Fast forward, when I wanted to study filmmaking, there was no institution in Pakistan offering it as a degree, as a discipline. तो क्या हुआ कि I found communication design to be the closest to filmmaking. मैंने वो पढ़ा, and then उसके बाद में I think around 2013 when I was still studying, I joined my father's private production house. It was called Summit Productions back then, and we used to make TV serials for television and other sorts of programs as well. Sometimes sitcoms, sometimes soap operas and whatnot. So yeah, अब क्या हुआ कि and how did I join that? So because my father had said that you could do anything, of course, in the drama industry, because that was the only industry that existed as an industry back then, but it has to be behind the camera. So I said of course yes, and I love theatre, and I would only act. और मेरे पास कोई और स्किल भी नहीं था, स्किल मतलब as in let's say मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया था कुछ और करना. So yeah, so I decided of course if that is the only option, I am going to not avail that. So all the training that I have got came on the job, of course. All skill that I have developed over all these years is out of my hands-on training,
and practice. But then again, TV and the kind of narratives it supports and are prevalent, पिछले कुछ सालों में उतने बुरे नहीं होते थे. You could still say the kind of stories that you had wanted to say, and then they were open to more forms of storytelling also. Like it wasn't just restricted to serials, but you could do series also. You could do some children's programs as well. एक ज़माने में Wicked Plus एक channel आया था, which was again बच्चों का ही channel था. So इस किस्म की कुछ liberties थी which TV did offer. जब वो close down होने start हुए, then I felt very confiscated, and I felt like victim narratives, and especially that centered around women, is not something that I enjoy doing for the rest of my life, and I would have to then maybe discontinue from here, or maybe do something about it. Doing something about the entire film TV industry, of course, wouldn't have been my individual let's say endeavor maybe. So I had to then choose between discontinuing and switching the medium or the industry maybe. I discontinued, of course, and then I switched to theatre. Theatre again, I am a child who's like grown up watching theatre. So हमें पता था हमारे हर 15 दिन की बाद जो हमारी एक activity थी as a family, वो ये होती थी कि we would go watch theatre. क्योंकि इतना रेगुलर होता था, एंड देन जिस किस्म का थिएटर होता था, वी यूज्ड टू लव दैट टू. वो अब के जैसा नहीं था कि सिर्फ एक निश ऑडियंस के लिए हो रहा है, एंड इट इज़ ऑफ अ सर्टन स्टैंडर्ड जिसको शायद फैमिलीज लेट्स से और यूथ जो हैं वो अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं और इन्जॉय भी नहीं करते हैं, और वो इतना स्टिग्मेटाइज्ड भी है. सो दैट काइंड ऑफ थिएटर आई रियली यूज्ड टू मिस, कि वो वाली कहानियाँ वापस कहनी चाहिए, वो वाला प्रोडक्शन का क्वालिटी भी होना चाहिए, बिकॉज अगैन एंड ऑफ द डे इट हैज़ टू बी अ विजुअल एक्सपीरियंस एज वेल. सो आप एक सब्सटेंस वाली कहानी तो ज़रूर कहें, बट यू हैव टू मेक इट इनटू एन एक्सपीरियंस विच इज़ इक्वली enjoyable at the same time for the audience. So yeah, there came about Weekend Theatre Festival, जिसका of course acronym जो था वो WTF था. We could not pull that off, not because of its name, but because the kind of monster we had made it into. हमने सोचा कि हम 3-4 दोस्त मिल गए हैं और हमारे पास कोई पैसे नहीं है और हम कोई डे जॉब्स करते हैं, कुछ सेवरल हजारों टाइप्स वाली, and we could make this, we could make a company and maybe run it also over several years at least. हमारा जो initial plan था. और हम क्या करेंगे, we will do this gigantic festival जिसके अंदर हम 8 प्रोडक्शंस बुलाएंगे फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, और क्या होएगा, लाहौर में साइमल्टेनियसली 4 जगहों के ऊपर में जो है ना थिएटर हो रहा होगा, और इतना शबैंग होएगा, और ये होएगा और वो होगा, एंड 3 लैंग्वेजेस होंगे, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी हो रहा होएगा, और टॉप ऑफ द लाइन आर्टिस्ट उसके अंदर में होंगे. तो ऑफ कोर्स दैट डिड नॉट हैपन एट ऑल. सो ये वाली अपनी शॉर्ट कमिंग मुझे तब रियलाइज हुई कि हैविंग एस्पिरेशंस और मे बी हैविंग सम क्रिएटिव what do you call inclination does not give you the right marketing skills. So marketing in business is a different acumen altogether, which I did not have, and none of us, I guess, हमारे ग्रुप के अंदर में जो 2-3-4 लोग थे, उनके अंदर में से किसी के अंदर भी नहीं था. And that hit us so hard कि oh my god, अच्छा यानी कि कहानी कहने के लिए this I am saying, like after 7 years of working in the professional industry, that it hit me कि वाकई में सिर्फ एस्पिरेशन होना या क्रिएटिव एबिलिटीज होना इज नॉट इनफ फॉर यू टू रन मे बी और पुट अप अ प्रोडक्शन. दैट केम एज अ मेजर सेटबैक, बट वी डिड नॉट लेट इट डिप्रेस अस टू द पॉइंट कि हम कहें कि हम वापस जहाँ से आए हैं वहाँ पे चले जाएं. हमने कुछ 4 साल के बाद में 7-8 साल के बाद में हम लोग कुछ पुराने NCA के दोस्त थे हु हैड कम बैक टुगेदर. वन ऑफ अस इज एन आर्किटेक्ट, वन ऑफ अस इज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर, आई वाज कम्युनिकेशन डिज़ाइनर, और एक हमारी एक और दोस्त थी. सो हमने बोला कि ये जो हमारा सबसे बड़ा इस पूरे जर्नी में जो एसेट इकट्ठा हुआ है वो हम चारों का इकट्ठे आना है. सो दैट वी शुड नॉट लूज नाउ. सो अभी हमको क्या करना है कि जो हमने इतना बड़ा एम्बिशन बनाया था कि वीकेंड के ऊपर में लाहौर में लाइक यू सेड के खाने के अलावा या कभी कभार साल में 1 आधी दफ़ा जब 2 दफ़ा फिल्म आ जाती थी, उसके अलावा तीसरी ऑप्शन क्या हो सकती है. थिएटर अब नहीं है, सो इट हैज़ टू बी थिएटर. और फिर क्या किया जाए, वो जो हम 8 वीक्स का प्लान कर रहे थे, क्यों ना हम इसको वीकली बेसिस के ऊपर में करें. एंड यू हैव टू बिलीव मी व्हेन आई से
दैट हमको खुद भी आइडिया नहीं था कि कितना इनॉर्मस, कितना कोलोसल किस्म का जो था शायद कमिटमेंट हम अपने आप के साथ में कर रहे थे. कमिटमेंट भी नहीं, मे बी we just dreamt of this center where activities would be happening on weekly basis all throughout the month, all throughout the year. But we did manage to take off from there. So this was exactly 2013 mid August जब हमने ये वाली कंपनी स्टार्ट की. हमको ये भी नहीं पता था, and again this is how my business knowledge stands, where it stands कि मुझे नहीं पता था हम कंपनी है, मुझे नहीं पता था कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप होनी चाहिए हमारी, हमको नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, एनजीओ टाइप वाले वर्ड से मुझको बड़ा अजीब सा लगता था कि शायद एनजीओ जो है ना इज हाईली टैबूड एंड हाईली लोडेड, मुझे ये वाली शायद टर्म अगर नहीं चाहिए है तो क्या होना चाहिए. हमें बोला हमें कुछ नहीं पता है. डे इन नाइट आउट पहले 3 साल हमने एक संडे ऑफ नहीं लिया. अगेन कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड चैलेंजेस. आई एम सेइंग यस, चैलेंजेस मैं बहुत सारे ऐसे बताऊंगी सिंस ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम द फील्ड, मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम द सेम फील्ड, सो यू नो द challenges of course, and some challenges are like not even generic to our gender, but also people in general who want to do anything constructive and productive, and maybe want to do something on their own. So अभी क्या हुआ कि the way we overcame it, of course, बड़े से डोमेस्टिक से हमारे घरेलू टाइप टोटके थे कि इस दफ़ा स्टाफ की तनख्वाह नहीं है और फलां प्रोडक्शन करनी है, गाड़ी बेच दी, ठीक हो गया. आप फलां घर के अंदर में रहते हैं और ये होता है उसका किराया अलग है, आपके दफ्तर का किराया अलग है. सो आई मूव माई रेजिडेंस इनटू माई ऑफिस स्पेस. हमने बोला वहाँ का भी हम कट डाउन कर लेते हैं. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आई वाज डूइंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. आई वाज डूइंग 3 jobs and then yet giving time to this new social enterprise which we learned we should call ourselves by then. So उसको चलाते रहने के लिए, and then सबसे important बात क्या होती है which I learned, एक मार्केटिंग की मैंने वर्कशॉप ली थी जाकर के, and I realized कि हर दफ़ा हम ये वाला लाइसेंस नहीं यूज़ कर सकते कि शायद हमारी क्रिएटिव ट्रेनिंग है या आर्टिस्टिक ट्रेनिंग है, तो हमको बिजनेस का नहीं पता होना चाहिए. व्हेन यू आर इनटू द बिजनेस तो फिर आपको उसके गेम्स एंड अप्स एंड डाउन्स आपको पता होने चाहिए. तो उसमें मुझे पता चला कि रेगुलरिटी एंड देन फ्रीक्वेंसी के बाद में रेगुलरिटी इज़ व्हाट गिव्स ऑडियंस आपके पास में कि वो सपोज उनकी वो क्या होएगी, अब अजीब टर्म व्हिच आई डोंट रिमेंबर नाउ आई गेस. सो हमको वो इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है. अगर हमने बोला है कि हर हफ्ते इवेंट होएगा तो देयर विल बी एन इवेंट पुट अप एट आवर स्टूडियो एवरी वीकेंड, एंड यू कैन गो विजिट. आज तक के डेट में हमारे पास में हमारी वेबसाइट नहीं है, हमारे पास में कभी टाइम ही नहीं निकला कि हम अपनी वेबसाइट बनाएं. सो वी mostly run and promote whatever we are doing through our Facebook page and now Insta as well. So everything is there, and you would see never once did we skip a weekend, and it has been there. It has been happening for now 6 years now. अब हमको ये था कि ऑफ कोर्स आप फेमिलियर पैटर्न्स ढूंढते हैं कि अगर आपने कंपनी बनाई है, आप इस तरह की कंपनी है, आपको जिस तरह का पैटर्न फॉलो करना चाहिए, आपको ये एग्जांपल चाहिए. सो हमारा एक बड़ा अजीब यूनिक सा एक पोर्टफोलियो था, प्रोफाइल बन गया कि वी weren't just organizing events, helping people put up their events, maybe doing collaborations with people with all sorts of companies and organizations and groups, ranging from drama groups to, of course, we once even collaborated with Luktachini, I guess. So कोई फिल्म बना रहा है, कोई वर्कशॉप करना चाहता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है. सो उनके साथ में उसके अलावा हम क्या करते हैं, जो हमको लगा कि शायद मे बी T2F in Karachi is doing something similar to us, and then there was Kuch Khas, there used to be Kuch Khas in Islamabad that got shut down, and then again I think वो इसी तरह किसी बुक शॉप्स वगैरह के अंदर में कुछ अपने इवेंट्स करते हैं. and then there came about Face again in Islamabad, but then हमारी जो एज हमेशा से रही है over all these 6 years again, that we do commercial theatre projects at least 4 to 5 on let's say city scale, national scale also, कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद. So 4 से 5 major theatre productions every year जो है वो हम करते हैं. और last year जो है, पहले हम last year तक में हम लाहौर, कराची और इस्लामाबाद सिर्फ करते थे. Then we expanded our let's say bandwidth to Peshawar, Multan and Faisalabad also. So अब हमारा मॉडल आज तक में चेंज नहीं हुआ है. हम जो 4 कोर मेंबर्स हैं, फाउंडर्स हैं, हम आज तक उसमें वॉलंटियर करते हैं और उसके लिए जो भी हमको करना होता है हम वही करते हैं. बट वी हैव एक्सपैंडेड आवर स्टाफ टू 12 to 16 people again. Challenges
particularly again like I said कुछ generic भी होंगे, कुछ particular to our field होंगे, कुछ particular to our kind of business होंगे जो कि हमें बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में बहुत सारी similarities नहीं मिली. Mostly financial होता है, that's so you're like talked about, so हम उसके ऊपर तरफ में नहीं जाएंगे. एक generally जो मेरा एक qualm है with theatre and with audience more than people who do theatre is that theatre को पता नहीं क्यों इतना ना लोग क्या उसको एक बिला वजह की ना एक sanctification मिली हुई है. उसके साथ में जब तक कोई मैसेज, कोई एजेंडा, कोई फलाना, कोई प्रोपेगेंडा नहीं होएगा ना, वो थिएटर नहीं होना चाहिए ना. लोग क्यों देखने के लिए हैं भाई? लोग फिल्म क्यों देखने जाते हैं? लोग अपने घर में टीवी क्यों देखते हैं? लोग खाना क्यों खाते हैं? लोग कपड़े क्यों पहनते हैं? लोगों को इस मुल्क में कपड़े से लेकर, खाने से लेकर, एजुकेशन से लेकर के कोई इसेंशियल्स ऑफ लाइफ मुफ्त नहीं मिलते, सब्सिडाइज नहीं मिलते हैं. थिएटर पर हुकूमत से लेकर के लोगों तक का डंडा है कि ये फ्री में दिखाना चाहिए है. और इसमें जब तक कि कोई बहुत अजीम बात ना की जाए तब तक में मतलब क्यों, क्या वजह है कि हम थिएटर देखने के लिए जाएं. फिर बात वही हो जाती है जी, एक ही किस्म का थिएटर होता है, वही मुजरे वाला थिएटर होता है, वही गाने वाला थिएटर होता है, वही जुगतबाजी होती है. नहीं होती है. आप लोग तो जाते भी नहीं हैं वहाँ पर, आप लोगों के लिए तो होता भी नहीं है वो वहाँ पर. ठीक हो गया. सो बट देन अगेन मुझे वो वाली भी यतीमों वाली प्ली बड़ी बुरी लगती है कि प्लीज़ थिएटर देखने के लिए आ जाएं. क्योंकि ये थिएटर हो रहा है तो एज ए थिएटर इज बिन ऑफन, और उसको जाके लोगों ने सर पे कुछ करके उसको जाके ऐसे 500 रुपये की टिकट जाके देख करके आनी होती है. सो या थिएटर इफ वी एवर वांटेड टू बी, जो हम बड़ी जोर से चाहते हैं, कम बैक into revive as an industry, let's say, because it did used to exist as an industry. At least जब तक मैंने देखा था कि मेरे वालिद और उनकी जनरेशन के जो लोग थे वो थिएटर करते थे. If we wanted to revive as an industry, for example, और ये मेरा ख्याल है, तो फिर हमको उसमें वो कंप्लीट इकोनॉमिक एक्सचेंज करनी पड़ेगी. जिन लोग जो कर रहे हैं उनको भी पैसे मिलने चाहिए, और जो लोग देखने के लिए आ रहे हैं वो लोग भी पैसे दें, और इसको हमें कस्टम बना लें. और चैलेंज के बारे में और नहीं बोलूँगी, बट आई वुड रियली लाइक टू, ये मैंने नया सीखा है कि ना, मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा कभी हो जाए, मुझे नहीं पता है कि मैं देख पाती हूँ या नहीं देख पाती और कौन इसको देखता है, बट ये थिएटर जो है लोग जैसे चूज़ करते हैं ना कि आज सेल लगी हुई है, फला नया रेस्टोरेंट खुला है, ये नई फिल्म आ रही है, सो वैसे थिएटर होना चाहिए है, और वो इसी तरह ही कम्युनिटी चूज़ कर सकें. ये फिल्म नहीं, आज हम ये थिएटर देखते हैं और परसों जाके फिर फलाना थिएटर देख लेंगे और आज फिल्म नहीं देखेंगे वगैरह सा. इफ़ इट कम्स बैक ऑन टू पीपल्स प्रायोरिटीज़ लिस्ट, लेट्स से, उस दिन मैं सुकून से. थैंक यू. एक मंजर से जो कह रहे कि इंतहा पे पहुंच के उसको मार दूं, तो यहाँ पे बैठे हुए सरपंच मुझे